جی السلام علیکم، پی کے ڈسکوری کے ساتھ میں ہوں فدا حسین۔ آج ہم موجود ہیں صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے تقریباً 28 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے کنارے۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے دنیا کا سب سے قدیم شہر آباد تھا، جسے موہنجو دڑو کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کی معنی ہے مردوں کا ٹیلہ، جبکہ یہ دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن سٹی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شہر مٹی کے ایک بڑے ٹیلے پہ آباد کیا گیا تھا۔ یہاں کے رہائشیوں کا مذہب بت پرست تھا۔ موہنجو دڑو کے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تعمیر باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کی گئی تھی۔ موہنجو دڑو کا یہ شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور اس کی دیگر گلیاں ایک دوسرے کو 90 کے درجے کے زاویے پر ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ ان گلیوں کو آج بھی دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئی ہوں گی۔ اس شہر کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اس شہر سے ملنے والی اشیاء مثلاً مہریں، مٹی کے برتن اور دیواروں پر لکھی گئی تحریروں کو آج تک نہیں پڑھا جا سکتا، جس کی وجہ سے بہت سے راز مٹی میں دفن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹیڑھی میڑھی گولائی میں بنی گلیاں کھودرو گاؤں کی نشانی ہیں۔ امیر الگ، غریب الگ۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا۔ یہاں کے پوش علاقے کے ہر گھر میں ایک غسل خانہ ضرور ملے گا۔ موہنجو دڑو کے کسان کپاس کاشت کیا کرتے تھے۔ یہاں کے کاریگر کپڑے بننے کا فن بھی جانتے تھے۔ کھنڈرات کی کھدائی سے کپڑوں کا ٹکڑا تو نہیں ملا، مٹی کے اوپر بنے کپڑے کی بنائی والے نقوش سے اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے۔ یہ اناج کے گودام ہے۔ یہ اناج کی بات کی جائے تو یہاں سے گندم کے چند دانے اور جوئی کے دانے ملے ہیں۔ ان لوگوں کا محدود ذریعہ معاشی کھیتی باڑی تھا، جبکہ تجارت بیرون تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں آنے والوں کے لیے انٹری ویزا کی شرط لازمی کر رکھی تھی۔ دیکھیں یہ کیسے گودام بنے ہوئے ہیں، اوپر چھت بنی ہوئی ہے اینٹوں سے۔ دیکھیں 5000 سال پہلے جب یہ ڈسکور کیا گیا 1911 میں، پھر وہ لوگ یہاں پر 1922 میں آئے۔ 1922 میں آ کر یہاں یہ کھدائی کا کام شروع کیا۔ جو چیزیں یہاں سے ملی وہ ہڑپا سے ملی ہے، جو چیزیں ہڑپا سے ملی ہے وہ یہاں سے ملی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی سویلائزیشن تھے۔ اب ہم نیچے جا رہے ہیں، جہاں صاف دیکھا جا سکتا ہے جو پتھروں سے ڈھکی ہوئی ایک نالی ہے۔ آج بھی ان گلیوں میں چلیں تو ترتیب کا احساس ہوتا ہے۔ مکانوں سے نکاسی آب کے لیے بنی گندے پانی کی نالیاں آج سے ہزاروں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ جب موہنجو دڑو ڈسکور کیا گیا تو ویسے ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ کھدائی کرتے گئے تو ان کے نشانات ملتے گئے۔ ان گھروں میں سیڑھیاں بھی موجود ہیں، جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ڈبل اسٹوری گھر موجود تھے۔ موہنجو دڑو کو دریائے سندھ نے 7 دفعہ تباہ کیا ہے۔ دریا اپنی سمت تبدیل کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈسٹرائے ہو گیا۔ جس نے کھدائی کی تھی اس کا نام KND کنشو انڈین تھا۔
मोहनजोदड़ो को ग्रेट बाथ को देखकर ये लगता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ के रिहायशियों में गुस्ल करने का रवाज पाया जाता था और वो हिफ्ज़ाना सेहत का खास ख्याल रखते थे। मोहनजोदड़ो के खात्मे के तकरीबन 2000 बाद बुद्ध मत के मानने वालों ने इस जगह एक मर्तबा फिर जिंदगी की रूह फूंक दी और उसे अपनी एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर आबाद कर दिया। लेकिन बुद्ध राहिब भी यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रह सके थे। 4500 साल ये कदीमी स्विमिंग पूल आज भी यहाँ मौजूद है। स्विमिंग पूल से ये निकलती पानी की निकासी के लिए ये सुरंग नुमा नाली तामीर की गई थी, जिसके अंदर से पानी को क्या कोई भी शख्स आराम से गुजर सकता है। ये वो नाली है जहाँ से ग्रेट बाथ का पानी बाहर निकलता था। देखें कितनी बड़ी नाली बनी हुई है। ये स्विमिंग पूल का पानी इससे बाहर निकलता था। इसमें 5 साइड के टोटल पहली साइड में डबल स्टोरी घर हैं जिसमें अमीरों के घर हैं। दूसरी डीएस एरिया है जिसमें गरीब लोग रहते हैं और जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और हैंडवर्क का काम करते थे। और चौथी साइड जहाँ से 14 लाशें एक ही वक्त में मिली और डायनासोर का स्टैचू मिला और कॉपर के कॉइन्स मिले हैं। 5वीं सिक्योरिटी एरिया है। वहाँ से खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं, पत्थर के गोले मिले हैं, भाले मिले हैं, वो पुलिस वालों का एरिया था। पूरे शहर की निगरानी करते थे। अभी हम बाथरूम की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं अंदर क्या है। ये नाली बनी हुई है गंदे पानी की निकासी के लिए। अंदर जा रहे हैं हम, देखें। यहाँ हमाम की तरह के गुस्ल खाने भी मौजूद हैं जिसके फर्श में तिरछी ईंटें नस्ब की गई हैं ताकि वहाँ पानी जमा ना हो सके। इस जैसी सीवरेज के निज़ाम की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमाम में एक सीढ़ी भी मौजूद है और एक दरवाज़ा भी मौजूद है। पानी की निकासी के लिए कुछ पाइप भी मिले हैं। अब हम जा रहे हैं मोहनजोदड़ो की म्यूज़ियम की जानिब। ये उसका गेट बना हुआ है। ये देखें सामने म्यूज़ियम है जहाँ एक बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ म्यूज़ियम का टाइम 4 बजे तक होता है। सामने देखें एक बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है। अभी हम अंदर जा रहे हैं और म्यूज़ियम से देखेंगे क्या क्या वहाँ मौजूद है। चलें अभी जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियां, शतरंज और छक्के मिले हैं। खिलौने भी मिले हैं जो बैलों और घोड़ों की शक्ल के हैं, जिनमें से एक बैल को दुम से खींचा जाता है तो वो अपनी दुम हिलाता है। उनमें से एक हाथी की शक्ल का है और एक पकी हुई मिट्टी की गाड़ी का बना हुआ है जिसमें पैसे भी मौजूद हैं। देखें और आगे टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। देखें
ये जो वहाँ से मोहनजोदड़ो की खुदाई के वक्त मिली थी, ये टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। देखिए कैसे पड़ी हैं। और ये 14 लाशों की हड्डियां हैं जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के वक्त मिली थी। देखिए ये वो हड्डियां यहाँ पड़ी हैं जो खुदाई के वक्त मिली थी, 14 लाशों की। और यहाँ पे कुछ हड्डियां पड़ी हैं। यहाँ से टूटे हुए बर्तन भी मिले हैं। देखें ये पूरे खाने पीने के बर्तन हैं जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये बल्कि मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने कटार, तीर और कमान भी मिले हैं। खुराक की बात की जाए तो गंदम और जुए के चंद दाने मिले हैं। इसमें रहने वाले का लिबास धोती और चादर था। और ये बड़े मटके हैं। देखें ये कुछ साबित निकले हुए हैं और कुछ टूटे हुए निकले हैं। देखें ये बड़े बड़े मटके हैं, इसमें शायद अनाज रखते थे। देखें ये बड़े बड़े मटके बने हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा मटका बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली 1200 से जायद मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इनकी तहरीर के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाओं की शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखत मोहरों की हैसियत रखती हैं। ये अलग अलग साइज की मोहरें बनी हुई हैं। देखें और ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और एक तराजू भी पड़ी है। देखें एक तराजू भी पड़ी हुई है और कुछ पत्थर के गोले भी पड़े हैं। देखिए ये एक तराजू है। आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो के मर्द और ख़वातीन भी ज़ेवरात पहना करते थे, जबकि कुछ मुजस्समों में औरत को कोहनियों से कंधों तक चूड़ियाँ पहनती दिखाई दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ से चरखे इस्तेमाल होने वाले लोहे की मीखें मिली हैं। इस इलाके से एक थैला चांदी के जवाहरात भरा मिला है और बर्तन भी मिले हैं और बच्चों के खिलौने भी मिले हैं। एक के मट्टी की गाड़ी बनी हुई मिली है और एक कश्ती भी मिली है। छोटे छोटे ऊंट भी बने हुए मिले हैं। ये एक गंदम है। देखें जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के टाइम मिली। अब हम नीचे जा रहे हैं, म्यूज़ियम से बाहर निकल। ये सर जॉन मार्शल की कार है। जब भी आप यहाँ मोहनजोदड़ो आएँ तो ये गाड़ी देखना ना भूलें।
یہ بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے۔ اس زمانے کی 1922 میں جب سر جان مارشل یہاں کھدائی کے ٹائم آیا تھا تو وہ اپنی گاڑی یہاں پر ہی رکھ کے گیا تھا۔ دیکھیں یہ گاڑی کتنی پیاری ہے۔ یہ ایک پارک بنایا ہوا ہے ٹورسٹوں کے لیے، اور یہاں پہ ایک مجسمہ عورت کی شکل کا بنایا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم کو اجازت دیجیے، پی کے ڈسکوری چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔